Welcome students. In this video we are going to discuss a very important topic from halogens, group 17 elements of the periodic table. The topic is oxo acid of halogens. In this video we are going to discuss about the acidic character of oxo acid of halogen. So let's first know about what are oxo acids. So oxo acids are the substances or the acids which have at least one OH bond. ये ऐसे एसिड्स रहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक OH बॉन्ड होना चाहिए. और सेकंड हमने ये देखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ H प्रेजेंट इन द गिवन एसिड, सिर्फ वही वाला H रिप्लेस होगा एज H प्लस आयन दैट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द O एटम. सो सिर्फ हमने OH बॉन्ड को ही देखना है. जितने OH बॉन्ड्स होंगे उतने ही H प्लस आयन उसमें रिप्लेस होंगे इन ए गिवन एसिड. फॉर एग्जांपल अगर किसी गिवन हैलोजन एसिड में 2 OH बॉन्ड हैं तो इट विल रिलीज 2 H प्लस आयन, और वी कैन से इट इज डाई बेसिक एसिड और डाई प्रोटिक एसिड. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर. इन केस ऑफ हैलोजेंस ऑक्सो एसिड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 2 वेज. फर्स्ट, हमने क्या करना है, हमारे पास सेम हैलोजन रहेगी बट ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट रहेगा ऑक्सो एसिड का, राइट. सेकंड, हमने एसिडिक कैरेक्टर देखना है ऑफ डिफरेंट हैलोजन. ऑक्सो एसिड ऐसा लेना है जिसमें डिफरेंट हैलोजन है बट विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर. सो इट मीन्स वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ oxo acid, not a single kind of oxo acid of halogen. So here I have written all the oxo acid in tabular form. Since oxo acids exist in different oxidation state and they have different name in different oxidation state. For example, +1 oxidation state वाले जो oxo acid हैं that are called hypohalous acid, like hypochlorous acid, hypofluorous, hypobromous, hypoiodous. Similarly, in +3 oxidation state they are called halous acid, chlorous acid, right. And in +5 oxidation state halic acid, chloric acid, bromic acid, iodic acid. And in +7 oxidation state they are called perhalic acid, perchloric acid, perbromic acid, periodic acid. And you can see in +3 oxidation state we have only one oxo acid, HbRO2 and HiO3 does not exist. And जो फ्लोरीन है उसका सिर्फ +1 में ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में भी नहीं है, +5 में भी नहीं है, +7 में भी नहीं है. बिकॉज वी नो जो फ्लोरीन है दैट डज नॉट form +3, +5, +7. It cannot form these oxidation state due to the non-availability of vacant d orbitals, right. So in case if we discuss the acidic character, we can discuss it in 2 ways, right. For example, if halogen is same but oxidation number is different, so we can take HClO4, HClO3, HClO2 and HClO4. इनका आपस में हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का. इन दिस केस हैलोजन इज सेम बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन +7, +5, +3 and +1. Also we can also discuss the oxidation acidic character with of oxo acid with different halogen but having same oxidation number. For example, we can have these oxo acids, or we can discuss these oxo acids. In this case halogen is different but oxidation number is same, +7, +7, +7, +1, +1 and +1. हम इनका डिस्कस कर सकते हैं, और either we can have example of these oxo acids for discussing the acidic strength of different halogens but same oxidation number oxo acids, right. So first of all let me show you the structure of oxo acids. जो oxo acid हैं, for example I have drawn the structure of oxo acids of chlorine. When it is HClO, आपने ये याद रखना है जो जितने भी oxo acids हैं that are tetrahedral, the central halogen will have sp3 hybridization, and since we know the valence configuration is this, so this unpaired electron will form OH bond and these three are lone pair in case of HClO. Since we have only one OH, this is the OH and other three are lone pair.
In chlorous acid we have 2 oxygen and 1, so 1 oxygen and 1 H, so OH bond there will be, and another oxygen, जो ऑक्सीजन के साथ H नहीं रहेगा दैट विल फॉर्म डबल बॉन्ड. कंसिडर ये ऑर्बिटल यूज हो गया फॉर मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. दीज टू आर लोन पेयर. इन केस ऑफ HClO3 वी हैव 1H 3 ऑक्सीजन, सो 3 ऑक्सीजन और 1H, जो ऑक्सीजन H के साथ लगी है दैट विल बी सिंगली बॉन्डेड, अदर आर डबली बॉन्डेड. सो अगेन पहले यहाँ ये ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, ये वाली भी डबली बॉन्डेड, और ये रह गया लोन पेयर. सिमिलरली इन क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड वी हैव 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लगा है तो ये सिंगली बॉन्डेड रहेगी, बाकी तीनों डबली बॉन्डेड. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ halogen acids, oxo acids of chlorine. So now let's discuss about the acidic strength. So let us have the acidic strength of oxo acid with same oxidation state and different halogen. So we can either discuss the by taking this example or by taking this example. The concept of acidic strength or the order of acidic strength will be same. So before discussing the acidic character, let us have some basic concept about the acidic strength of halogen acids. So जो acidic character है उसके लिए हमने ये concept apply करना है, and this concept can be applied to acidic strength of any acid, either organic acid or inorganic acids, and either other than oxo acids also. So the concept is any factor which decrease the charge में भी negative और positive, any factor which decrease the charge of a given species will make that species stable. Hence the corresponding substance means जिससे वो species बनी थी will be stronger acid if that is the acid, or stronger base if we are discussing about base. For example, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव MH, इट विल रिलीज H प्लस आयन, दिस इज द एसिडिक बिहेवियर, इट इज रिलीजिंग H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम एंड फॉर्म M नेगेटिव, राइट. H प्लस निकला है तो M नेगेटिव बनेगा, दिस इज एसिड. और आफ्टर द लॉस ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एसिड जो चीज़ बनती है, स्पीशीज बनती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. एंड जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट में बताया, हमने कॉन्जुगेट बेस जो स्पीशीज बनी है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है. इफ़ द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल देन कॉरस्पॉन्डिंग सब्सटेंस और कॉरस्पॉन्डिंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड. अब कोई भी फैक्टर जो इसके नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, आइदर बाय एक्सेप्टिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, मीन्स इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जहाँ फिर इसका नेगेटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस किसी और के ऊपर भी डिस्पर्स हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म होएगा, कम होएगा. जितना कम होएगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा, उतना ही कॉरस्पॉन्डिंग एसिड ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, right. If we apply the same concept for discussing the basic character of a base, so in case of base is a substance which give OH negative ion in aqueous solution, so M plus बनेगा. so कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन और छीन के अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अगर इसके ऊपर लगेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा. अगर हम कुछ ऐसा इसके साथ कोई ग्रुप लगा दें जो अपने नेगेटिव चार्ज को, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज. सो एनी फैक्टर विच डिक्रीज इट्स चार्ज it will make it stable, the corresponding base will be stronger base. So यही concept हमने apply करना है acidic strength of oxo acids पे. So here I have discussed the order acidic strength order जो है मैंने इनका लिया है HClO, HBrO, HiO4. So the order says on moving down the group the size of halogen atom increase करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, हैंस द एसिडिक स्ट्रेंथ विल आल्सो डिक्रीज. सो रीज़न क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने से, क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है? देयर आर 2 रीजन्स. वन आई हैव डिस्कस्ड हियर in brief, and other we already discussed by applying that factor.
that concept which we have I have just discussed before. So in case of HOCl, since Cl is very much electronegative, it will withdraw the electron of this bond toward itself. ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को. इट मीन्स जो ऑक्सीजन है दैट विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब ये भी एक कॉमन जनरलाइजेशन है कि कोई भी चीज़ अपने आप को डेफिशिएंट नहीं रखना चाहती, वो अपनी डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करेगी बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. जितने भी उसके आसपास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अगर उसके पास है आसपास से, तो वो ज़रूर लेके अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से अपनी डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करना चाहेगी. और हम वी नो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl इट बिकम डेफिशिएंट. अब एक चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ऊपर से वो डेफिशिएंट भी होगी, तो वो क्या करेगी, जितनी स्ट्रांगली वो पहले इलेक्ट्रॉन किसी के शेयर कर सकती थी, उससे भी ज़्यादा पावर से वो शेयर खींचेगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को. इट मीन्स ऑक्सीजन बिकॉज इन दिस केस बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगी, रिजल्टिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन. सो इट विल बिहेव अ स्ट्रॉन्गर एसिड. आई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेस पावर से खींच रहा है. आई ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं हो पा रही है, तो H+ भी उतनी ज़्यादा अंडर टेंशन में नहीं है. ये वाला बॉन्ड H+ भी उतनी ही जल्दी नहीं रिलीज होगा. एंड द सेकेंड फैक्टर वी कैन अप्लाई like if we release H+ ion, this conjugate base will be formed. Means HOCl after releasing H+ ion will form OCl negative. अब ये नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर ये कॉन्जुगेट बेस होगा. स्टेबल, उतना ही स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा. जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर ये एसिड होगा. सो हमने देखना है कि नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, डिस्पर्स होना चाहिए. Cl बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा पावर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. मीन्स अल्टीमेटली ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करेगा. ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल बन रहा है. इट मीन्स इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर एसिड. आयोडीन, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, जैसे आयोडीन की बहुत कम है, तो नेगेटिव चार्ज उतना ही कम ही अपनी तरफ खींचेगा. तो इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है नेगेटिव चार्ज. तो आयोडीन के केस में कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है इतना. दैट इट मीन्स HOI, hypohalous acid, will be weaker acid. Now let us discuss the acidic character of oxoacids having same halogen but different oxidation number. So on moving from +1 oxidation state to +7, the oxoacid की जो acidic strength है it increases, and this order can be explained on the basis of stability of conjugate base formed again. So I have written here the common reaction HClON. When release H+ ion, it will form HClON1 negative ion. So in case of HClO4, it will form ClO4 1 negative, HClO3 1 negative, ClO2 1 negative, ClO 1 negative. अब हमने देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस में सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है. तो since we have discussed the structure of halogen acids, so in case of ClO4, since we have these oxygen, so इसका जो है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ऑक्सीजन के भी आप ऊपर डिस्पर्स हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस, राइट. अगेन दिस इज डिस्पर्सिंग ऑन दिस एंड resulting in the formation of this resonating structure, right. So in the next resonating structure it is forming this. It means जो negative charge है that is not only on this oxygen, it is shared by, or we can say it is dispersed on all the 4 oxygen atom. So the net negative charge on the each oxygen is 25%, right. So in case of HClO4, ClO4 1 negative ion, जो नेगेटिव चार्ज है that is 25%. जैसे I have explained the resonating structure of ClO4 like this.
means the negative charge and the double bond are dispersed over all the 4 oxygen atoms. So the net positive negative charge on all the 4 oxygen atom is 25% negative. In case of ClO3, देर आर 3 ऑक्सीजन एटम, सो ये तीनों ऑक्सीजन शेयर करेंगे नेगेटिव चार्ज को, तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना आया 33%. इन केस ऑफ ClO2 वन नेगेटिव, सो दो ऑक्सीजन है 50% नेगेटिव चार्ज. इन केस ऑफ HClO, अगर H रिप्लेस हो रहा है तो बनेगा ClO नेगेटिव, 3 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज आगे डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है तो 100% नेगेटिव चार्ज. सिंस वी नो ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज कम होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, कोई भी ऐसा फैक्टर जो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, एनी फैक्टर विच डिक्रीज द चार्ज ऑफ ए गिवन स्पीशीज विल मेक दैट स्पीशीज स्टेबल, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ स्टेबल बन जाएगी. ऑन दैट बेसिस कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हुआ, ClO4 1 नेगेटिव में. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ये कॉन्जुगेट बेस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है. सो ये किससे बना है, ये बना है फ्रॉम HClO4 से, ये बना है HClO3 से, ये बना है HClO2 से, एंड दिस इज़ फ्रॉम HClO. सो इसका कॉन्जुगेट बेस HClO4 एसिड जो है, इसका कॉन्जुगेट बेस इज मैक्सिमम स्टेबिलाइज. इट मीन्स इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड. Right, so this is the topic of acidic strength of oxoacids. The order of acidic strength, and this can be explained as follow. Greater the dispersal of negative charge of conjugate base, greater will be its stability, and hence stronger will be the corresponding acid. And this stability can be explained by drawing the resonating structures. Right, so in this case, if we don't have enough time to draw all the resonating structure, we can show on a single resonating structure only. Means by showing this, means जो negative charge है वो चारों के ऊपर disperse हो रहा है at a time, resulting in 25%. So you can also explain this as follow. This is a very important topic and do it carefully. Okay.